Uh, I'll join from another device. So No this is not worries, no allowing me worries, to. no worries. And I hope one of your parent is with you, right? Yes, I'm just calling my dad. Ah, So can you just remove me from this meeting? I don't know, my phone hanged. yeah. So you'll have to tell me like what have been your scores from class 9th onward? From in class 9th, it was good. I scored. I don't know the average score, but I scored 90 above in all of them, except maths. I have never been good in math. Right. And 10th too, I scored 95 in science, 95 in SST, 94 in English, and again less in French and maths. In maths, it was 89. And So overall percentage came out to be 91, 92 sort of. yes, sir, 92. Okay, great. Now, so what I'll do is I'll show you a couple of universities which are in India, and they have a liberal kind of a approach. Okay, so you might as well find some courses in biology there. Okay. So you're in class 11th, right? Yes, sir. Wonderful. So you'll have ample time to prepare for as well. Okay, let me just share the screen with you. Is the screen visible? Yes, sir. So here you are. This is not. So let's start with Ashoka. So Ashoka has a course which is purely in biology.
okay, where you can take a bio major, and probably you can have a minor which can be either psychology or any other subject of your choice. Okay, so that is a possibility. This course, if you wish to complete in 3 years, you can complete in 3 years. If you want to do a research paper, then you can continue till the 4th year also. Okay. So this is university is located in Sonipat, and the admission process is very restrictive. Average 7.5 is what the acceptance rate is. That means out of every 100, only 7.5 people will be able to get through. Okay, that is how it works. It's a pure course in biology. You can actually go onto the website and look at the details of the course as well. Okay, so that is one. So this can be one university. Now the admission process here is pretty different. So what they will require is your academic scores from class 10 to 12. They will also require your, I mean, if you want to appear for a SAT or ACT, you can do that. You can send their scores as well. Plus, they will have some personal essays. Majorly, there are 3 essays actually. Then there is a recommendation letter that is required from your teachers. And Janya, we lost you. Yes, sir. So apart from that, the recommendation letter, you will also require a lot of extracurricular certifications in order to send the application. So once we send the application, if they shortlist us, they will ask us to come down for a assessment and interview. So there will be a written test plus an interview. Once you clear that, thereafter they might give you a place. Okay, so that is how this works. Yes, sir. So what I have understood for Ashoka, the admission parameters, these are sort of this. I don't know if the slide is changing. Wait, I'll still. Here you are. So these are the admission parameters. Majorly what they are trying to look at is that how interested are you in the subject? Secondly, how has been your academic performance? Thirdly, how open-minded are you in terms of learning? Fourthly, how oriented are you in terms of solving problems? Okay. So these are the 4 characteristics that we look for majorly in their students. And we have to prove this to them that we fit with all these parameters. We are fit with all these parameters. So probably we'll have to do a set of activities that prove these kind of qualities. Okay. So for example, for intellectual curiosity, we might pick up an advanced level biology course apart from our CBSE studies. Okay. So that will prove our interest. If it is academic rigor, that is totally in your control. That means scores are obviously in your control. Willingness to learn, probably we can look at a lot of learning-based tools, a lot of learning-based courses. We can do that. Plus, as a bio student, if you can write a research paper, that can take you a long way. That can take you a very long way. Okay. So that is one. Yesterday, my colleague Anjali also probably had a word with your dad. And your dad was saying that probably can we look at some kind of a nursing course? Okay. Yes, sir. Are you keen about nursing? No, sir. I can understand that. Anyways, so when you apply to Ashoka, what happens is that they have admission cycles. So this year's admission cycle is right now in front of you. Can you see that? Yes, sir. Yeah. So जब भी हम अप्लाई करते हैं ना, उसके एप्लीकेशन करने के बाद जब वो साइकिल खत्म होता है, उसके बाद ना टेस्ट होता है. ठीक है? तो टेस्ट का डेट भी साथ साथ वो लोग दे देते हैं. हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि फर्स्ट या सेकंड साइकिल में अगर आप अप्लाई कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा. Okay? So probably mid of October next year, we should send our application. Okay. Now let's say, yeah, this is another university. This is called Kriya. Okay. So they have a biological science major program. Okay. And along with that major, you might take a minor also. Minor can be psychology or any other subject of your choice. And they have a physical science program also,
where you can study physics and chemistry as a joint major. If you have an interest, you have an interest. So this is university is in Andhra Pradesh, and it's a very academic oriented university, very well funded for research. Okay. So probably, people like you who are willing to study bio oriented areas, for you it is very important to understand that ultimately you will get into research. Okay. So are you open to research for that matter? Sir, I'm still not, totally aware about my career. I don't know what to do yet. So out of the subjects that you have, do you have any one of them which is close to your heart? Biology. Okay. So out of biology, now there are tons of things that we can do. Let me show you something. Wait. Just a minute. Here you are. So these are what we call the most emerging careers in the bio area. Okay. So there are 4 areas that normally biologists today are looking forward to. One of them is sustainability. So sustainability से क्या मतलब हुआ? Any idea? What do you mean by sustainability? No, sir. तो जैसे आप देखते हो ना कि ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ आइलैंड्स होते थे पहले। तो एक तरह का जानवर होता है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, उससे ना पूरा एक आइलैंड बनता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ने लगा, तो वो कोरल रीफ्स अपने आप मर जाने लगे, तो वो आइलैंड्स ही गायब हो गए। तो अब उसको सस्टेन करने के लिए वहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उसको दोबारा से सस्टेन किया जाए। सस्टेनेबिलिटी काफी सारी चीजों में यूज होती है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई। तो बिल्डिंग्स बनाते वक्त ऐसे मटेरियल का यूज करना जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हो या एनवायरनमेंट बेटर हो, ऐसी चीजों को भी हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो सस्टेनेबल क्लोथ्स होते हैं, सस्टेनेबल फैशन होता है, सस्टेनेबल डिजाइन होती है, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होते हैं, और भी बहुत कुछ सस्टेनेबल हो सकता है। और इस सब में जो दिमाग होता है वो एक बायोलॉजिस्ट का ही लगता है, क्योंकि आप नेचर को, एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनिजम्स को, ये इन चीजों को आप ज्यादा अच्छा समझते हो। तो फिर आप ही ये आइडियाज लाते हो कि किसी चीज को हम सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है। और आजकल ना ये ट्रेंड है, काइंड ऑफ फैशन हो गया है लोगों का कि ये हर चीज को ना सस्टेनेबल बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चाय के कप्स, अब आपके घर में भी, मेरे घर में भी ग्लासेस यूज होते हैं, ग्लास या सेरामिक यूज होता है, राइट? Yes, sir. So it's basically making, more environment friendly एब्सोल्युटली। तो things. अब क्या हो रहा है कि ग्लासेस की जगह पीपल आर ब्रिंगिंग इन बैम्बू बेस्ड कप्स, या जो मिट्टी से बनते हैं कप्स, उनको वापस लेकर आ रहे हैं। सो दैट इज सस्टेनेबल ट्रेंड। तो ये जो सारा आइडिया है ना, ये आप बायोलॉजिस्ट के दिमाग से ही आता है, और गवर्नमेंट को भी ना ये आइडियाज बहुत सारा चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन का जो है, एक तरह का पोल्यूशन नहीं है ना, सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं होता, हम जो चीजें डंप करते हैं, ठीक है, उससे भी बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप और मैं तो दिल्ली में रहते हैं, तो आपको पता होगा हमारे यहाँ कूड़े का पहाड़ है ना, और वो पहाड़ छोटा नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ना अब टेंशन हो गई है कि यार इसको कम कैसे करेंगे, ऐसे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दैट इज वेयर सस्टेनेबिलिटी इज कमिंग इनटू पिक्चर। ठीक है। तो ये आने वाले कल के लिए ना बहुत अच्छा कॉर्ड्स है, और काफी इसमें एडवांसमेंट होगा। दूसरा है फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। ये बायो का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि कहते हैं कि पूरे दुनिया में कई जगहों पर पानी खत्म हो जाएगा। तो जब पानी खत्म हो जाएगा, तो हमारे फूड का ग्रोथ कैसे होगा, हम नया फूड प्रोड्यूस कैसे करेंगे। इसमें अगेन हमें बायोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होती है कि लेस वाटर रिटेंशन क्रॉप्स जो होते हैं, की पैदावार कैसे हो, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं,
प्रमोट कैसे करे, फार्मर्स को कैसे समझाए कि ये आप यूज करोगे तो पानी कम लगेगा, काइंड ऑफ। तो दैट इज ऑल्सो प्लस फूड आइटम्स को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अब लोग आजकल, आपको पता है, वीगन बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लोग कोशिश कर रहे हैं कि नॉन ग्लूटेन फ्री फूड खाना है हमको, ठीक है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी होती है कि इसको नॉन ग्लूटेन फ्री कैसे बनाएंगे, वो टेक्नोलॉजी आप बताओगे। Okay, so the courts will actually teach you how to make non-gluten free or how to produce food or probably how to produce food without water or what could be a better production system. तो ये सारी चीजें ये लोग बताते हैं। फिर नए नए फूड आइटम्स भी आते हैं जो लोग पहले ट्राई नहीं करते थे, अब लोग ट्राई करते हैं। या सो प्रॉब्ली मशरूम एज एन एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इंडिया में मशरूम पॉपुलर है नहीं, लेकिन मशरूम धीरे धीरे पॉपुलैरिटी ले रहा है और इसकी काफी पैदावार हिमाचल में होती है। इफ यू गो टू अ प्लेस लाइक नॉर्थ ईस्ट, अगर आप गैंगटॉक जाओगे, वहां पूरे स्टेट में सारा खाना जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। मतलब किसी तरह का फर्टिलाइजर वहां पे इस्तेमाल नहीं होता और सब लोग अपने अपने घरों में भी गार्डनिंग करके वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जब हम खाना खाने के बाद भी उसके छिलके वगैरह भी फेंकते हैं ना, तो उससे भी पोल्यूशन नहीं होता है, वो मिट्टी में समा जाता है और दोबारा ग्रोथ के लिए तैयार हो जाता है। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक। तो ये जो सारा कल्चर है ना, ये कल्चर डेवलप करता है एक बायोलॉजिस्ट। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ज्ञान? Yes, sir. तीसरा एक और एरिया है विच इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली डेटा साइंस है। इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स, कंप्यूटर्स ये इन्वॉल्व होता है। तो हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि अगला कोविड कब आएगा, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज वी यूज स्टैटिस्टिक्स, वी यूज बायोलॉजिकल मेथड्स एंड फिगर दैट आउट। तो दैट इज नथिंग बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन होता है उसमें। ये बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, एनवायरमेंट से हो सकता है, वेदर का हो सकता है, ऑर्गेनिज्म लाइफ के बारे में हो सकती है, पचासों चीजों के बारे में हो सकती है। क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या है, कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी समस्या है। तो समस्याओं को समझने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत है। तो ये 3-4 करियर्स थे बायो में। आप देखो यहाँ पे कुछ No? और करियर्स है। हेलो, So what is biomanagement? बायो मैनेजमेंट। So biomanagement is bio plus business put together, where you might develop certain products or you might develop certain processes which are related to bio. Majorly वही चीज होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ना कुछ और भी निकाले थे। जैसे कि एक ये होता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ठीक है। सो आप जानते हो जैसे मर्डर्स हो गए, ठीक है, या कोई क्राइम हो गया, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हमें फोरेंसिक की यूज करनी पड़ती है। तो वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, दैट इज कॉल्ड फोरेंसिक साइंसेस। तो ये कोर्स भी देख सकते हैं, अभी काफी पॉपुलर है। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिसिस्ट, सो दैट इज मेजरली गेटिंग इनटू मेडिसिन और प्रॉब्ली प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन सब चीजों में जाता है ये। मेरी बात Sir, कराना। यस, so my father has a doubt. या प्लीज। पापा बात करो। हेलो सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस ठीक है। जी बताइए सर। जैसे बच्चे का, जैसे उस दिन आने के बाद ना काफी हमने विचार भी करा कि क्या करना चाहिए। हम्म, तो एक तो हमारे दिमाग में आया था कि ये नर्सिंग का कोर्स कोई हो सके तो अच्छा, उसके अंदर स्कोप है बच्चे का। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले ही मैं यान्या से पूछ रहा था कि हम्म। कल आपकी मेरी कलीग अंजलि से भी बात हुई थी, तब पे आपने ये बात जिक्र की थी। तो हमने इनसे पूछा कि आप नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो, तो हर आंसर वाज डिफरेंट। उसका आंसर था कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो So मैं, my father's opinion is that it's really, convenient to study nursing outside because it's cheaper than the usual medical ट्रू courses. ट्रू, इट इज ट्रू तो एंड इसमें एंड स्कोप भी तो काफी है ना सर। हर कंट्री बिल्कुल के अंदर है, इसके अंदर बिल्कुल है, स्कोप। बिल्कुल है, लेकिन सर रिक्वायरमेंट हमेशा हर ना, कंट्री में होती है। मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूँ, चलो जितना भी चाहे स्कोप हो, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो फायदा नहीं होगा सर। क्योंकि काफी देखो, कम खर्चा भी हो फिर भी खर्चा तो होगा ना।
और बच्चा वहां जाए और वहां जाकर के उसे कोर्स पसंद ना आए, उसे समझ ना आए और वो ड्रॉप आउट हो जाए या उसे दिक्कत आ जाए कोई, तो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि अपन थोड़ा एक्सप्लोर कर ले, और इतनी जल्दी नहीं है बाहर जाने की, हो सकता है हम इंडिया में ही पढ़ लें अभी फिलहाल के लिए, फिर हम पोस्ट ग्रेड में बाहर चले जाएं जब हमारा मन पक्का हो जाएगा, तो प्रोबब्ली देन हम चले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, काइंड ऑफ। आपने तो जो फोरेंसिक साइंस बताया उसके लिए इंडिया में अपने हैं क्लासेस? नहीं, इंडिया में अंडर ग्रेड रिलेटेड फॉरेंसिक साइंसेज नहीं होता, वो पोस्ट ग्रेड रिलेटेड होता है। पहले आपको बायोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है 3 साल, उसके बाद आप फॉरेंसिक साइंसेज के लिए आप एंट्रेंस देते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होता है फॉरेंसिक साइंस के लिए, उसके बाद आप कोर्स कर सकते हो फॉरेंसिक साइंसेज का। तो ऐसे सिर्फ दिल्ली नहीं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंडिया फॉरेंसिक साइंसेज पढ़ाती है, लेकिन पहले आपको बायो पढ़ना होगा 3 साल, फिर आप अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स में। तो ऐसे होता है। और कोई क्वेश्चन? और क्या क्वेश्चन है बेटे? नहीं अभी तो अभी। तो यहाँ इसको बच्चे को मतलब यहाँ अगर यहाँ कराते हैं तो पहले 3 साल कोर्स करना है यहाँ पे अपना पूरा? हाँ जी, हाँ जी, पहले 3 साल कोर्स करना पड़ेगा, तभी जाके होएगा। इसीलिए मैंने इनको पहले कुछ यूनिवर्सिटीज दिखाए थे आज, जैसे कि अशोका हो गई या क्रिया हो गई। तो इन यूनिवर्सिटीज में भी आप जाकर के बायो का कोर्स कर सकते हैं। इंडिया में कोई कमी नहीं है बायो कोर्सेज की, लेकिन अल्टीमेटली हमको अब्रॉड ही जाना है। तो या तो आप अंडर ग्रेड में चले जाइए या तो आप पोस्ट ग्रेड में जाइए। लेकिन यान्या के केस में प्रॉब्लम ये है कि यान्या इज स्टिल नॉट वेरी श्योर कि उसको जिंदगी में करना क्या है। हम्म। इसलिए मैं एडवाइस यही करूंगा, देखो हालांकि मेरा काम बाहर भेजने का है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस ये करूंगा, फिलहाल के लिए यान्या को आप इंडिया में रोक के रखिए, 3 साल उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। जब वो अपने मन से पक्की हो जाए कि हाँ मेरे को जो मैं कर रही हूँ उसमें मजा आ रहा है, मेरे को यही आगे करना है, देन फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स हम उसको बाहर भेजें। तो राइट अशोका अशोका में एडमिशन मतलब किस बेसिस पे होता है, परसेंटेज सर? पे? नहीं नहीं सर, अशोका का एडमिशन बिल्कुल विदेशी यूनिवर्सिटीज की तरह होता है। तो हम्म। वहाँ वो आपका पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं, आपके 9th से लेकर 12th तक सारा एक्स्ट्रा करिकुलर्स चेक करते हैं, हम्म। आपके 10th से लेकर 12th तक की मार्क्स जाती है, फिर आपको एसेज लिखना होता है। उसके बाद अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर आपको वहां पर इंटरव्यू देना होता है, प्लस आपको रिटन टेस्ट देना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है उनका, 4 स्टेप्स वाला। और एडमिशन बहुत कम लोगों का होता है, कोई 7.5-8% बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। तो इसीलिए सिर्फ अशोका पे हम भरोसा नहीं कर सकते। मैंने इसलिए इनको बोला था कि आप क्रिया यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करो, मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज आपको दिखा देता हूँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अशोका में क्या एक्सपेंस आते हैं साहब? सर 3 साल का सब कुछ मिलाकर 30 lakhs के अराउंड। 3 साल में? हाँ जी, 3 साल का, इसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। ये सोनीपत में है ना, आपने बताया हाँ था जी, ये? हाँ जी। और कौन सा बता रहे हैं सर जो थोड़ा कम बजट में है सर कोई? कम बजट में मतलब आप कितने बजट में ढूंढ रहे हो? मतलब यही 15 एक के आसपास, 15-20 की रेंज में। ठीक है, मैं आपको देता हूँ एक ऐसी, ये लीजिए अभी आपके सामने। मैं इस दिस इज पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, ये गांधीनगर गुजरात में है। अच्छा, गुजरात। ये करीबन 18 साल पुराना यूनिवर्सिटी है, हम्म। और इनके पास बीएससी के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। हम्म। तो वहां आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई कोर्स पसंद आ जाता है तो ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और 15 लाख में अगर आपको देखना है तो यहाँ देख सकते हो, बीएससी में, एक सेकेंड ना। हाँ, तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, यहाँ पे बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज की पढ़ाई होती है। तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडिया में, तो यहाँ खर्चा काफी कम आता है। दिस इज द यूनिवर्सिटी, ये रहा। और इसके पास ये रहा बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेस, ये 2012 में इनके यहाँ स्टार्ट हुआ है, 10 साल हो गए हैं। तो प्रॉब्ली ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
उसमें खर्चा काफी कम आएगा। ये अराउंड 10 से 12 लाख में आई थिंक निपट जाएगा ये वाला। ये आप चेक कर लीजिएगा ज्ञान ना, ये वाला यूनिवर्सिटी। Yes. मैं आपको अहमदाबाद। लिंक चैट पे डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी साइंस से रिलेटेड सारे कोर्स करा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ। और प्रॉपर इसको बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेस का कोर्स होता है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से 3 साल करने के बाद ये फिर बाहर जा सकते हैं हाँ, बाहर चली जा सकती है। और आजकल ना सर, मास्टर्स? ज्यादातर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है इंडिया में कि 3 की जगह 4 साल भी अवेलेबल होता है। तो बायो ओरिएंटेड स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि 3 साल पहले पढ़ाई की, फिर 1 साल रिसर्च का काम किया, 4 साल की ऑनर्स डिग्री आ जाती है आपके हाथ में। उसके बाद आप यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और सारा यूरोप और सारा यूके सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम्म। ठीक है ना। तो वो एक चीज कर सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ और कोई यूनिवर्सिटी मेरे दिमाग में आ रही है, एक सेकेंड और है। अच्छा, दिल्ली हाँ, में कोई नहीं है सर? दिल्ली में थोड़ा मुश्किल है सर, दिल्ली में तो मुश्किल ही होता है थोड़ा। आसपास में थोड़ा मिल जाता है, अदरवाइज तो थोड़ा मुश्किल ही है ना। अह, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है सर जो नहीं, करा रहे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायो का कोर्स है, बीएससी लाइफ साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी है, कई सारे बायो ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, लाइफ साइंसेज है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सारे कोर्सेज हैं ही हैं। वो तो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा पे। हम्म। Mm. तो वो तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं होता ना सर एंट्रेंसेस का, निकला नहीं निकला। और सीयूईटी तो वैसे भी पिछले साल हमने देखा ही है कि कैसे हुआ है। तो बैकअप्स रखने पड़ेंगे, दैट्स हाउ इट इज। तो आप 2-3 यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी अप्लाई कीजिए। प्लस मैंने उस दिन भी आपको बोला था यानी फर्ग्यूसन यूनिवर्सिटी पुणे की, ठीक है? तो वो आप ट्राई करो, ये देखो, फर्ग्यूसन, दिस इज द यूनिवर्सिटी फर्ग्यूसन। ये आप ट्राई करो, यहाँ पर भी आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है? फिर आप ये वाला ट्राई करो, क्राइस्ट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। यहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे बायो ओरिएंटेड, बेंगलोर में? बैंगलोर में। तो नाना करके भी आप समझ लो, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला के कम से कम 10 से 15 यूनिवर्सिटीज आपके पास जरूर होंगी इंडिया में, जहाँ बायो के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। कहीं पे बायोटेक मिलेगा, कहीं पे माइक्रोबायो मिलेगा, कहीं पे फूड प्रोसेसिंग मिलेगी, कहीं पे बायोलॉजिकल साइंसेज होगा, कहीं पे लाइफ साइंसेज होगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोर्सेज हैं। तो आपको हर कोर्स यानी खोल के देखना पड़ेगा, तब भी आप कर पाओगे, ठीक है? और मतलब मैं आपको अब्रॉड भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि यू आर नॉट वेरी श्योर, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि भेज तो देंगे लेकिन फिर वहां जाकर के आपको पसंद नहीं आई चीजें तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पे थोड़ा पहले वो एक्सपेरिमेंट फंड, कर ले। थोड़ा फंड का भी है ना सर, फंड बाहर के लिए फंड भी तो ज्यादा चाहिए ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बाहर के लिए फंड बहुत ज्यादा चाहिए होता है। वैसे आप, लेट से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 3 साल में राउंड अबाउट से 60 lakhs, ठीक है, वो आपके लिए होगा कंफर्टेबल? 60? 3 साल में 60 lakhs आवाज कट रही है, इंक्लूसिव, हेलो? हाँ 3 साल में 60 लाख इंक्लूसिव ऑफ फूड एंड योर ट्यूशन। हम्म। ये पॉसिबल हो इसको सकता है। और आप चाहो तो कुछ यूनिवर्सिटीज हम और भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कनाडा वगैरह में भी होता है। तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, जैसे 18-20 लाख रुपया साल का, ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी भी आप ढूंढ सकते जैसे आपने उस दिन बताया तो टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया था, मैंने कल हो। मैडम राइट, से भी कहा था। उसके अलावा भी तो काफी बिल्कुल यूनिवर्सिटीज और वही वो मैं ऐसे आपसे कह रहा हूँ। इंस्टीट्यूट होती हैं जैसे जहाँ पे कनाडा, बच्चा 1 साल या 2 साल का कोर्स करने के लिए चला जाए यहाँ से बस एक बार, नहीं, फिर 1 साल 2 साल नहीं, आप जब कनाडा जाते हो तो वहां जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो 4 साल की होती है, ठीक है? और बाकी कंट्रीज में 3 साल की होती है, ठीक है ना। हम्म, सो आप मिनिमम उतना ही जाओगे। और वहां जाकर के आप क्या कर सकते हो कि कनाडा में एक सस्ता तरीका ये होता है कि शुरुआत में यूनिवर्सिटी में मत जाओ, पहले आप कॉलेजेस में पढ़ लो। कॉलेज में 1 साल हम्म, पढ़ने, 2 साल पढ़ने के बाद आप ट्रांसफर ले लो यूनिवर्सिटी, ठीक हम्म, है? तो जब आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपकी फीस जाती है कोई 8 या 9 लाख रुपए आपकी फीस होती है मैक्सिमम। हम्म, और 6 लाख रुपए लिविंग कॉस्ट, तो मान लो 15 लाख रुपए प्रति साल,
तो 2 साल में 30 लाख गए। फिर आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ आखिरी 2 साल के लिए, ठीक है। फिर आप यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करो और आप डिग्री लेके निकल जाओ। इससे आपका टोटल खर्चा जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका बहुत सारे लोग करते हैं, पंजाब से काफी ये तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे स्पेंड नहीं करना चाहते और वो किसी तरीके से बस पहुंचना चाहते हैं, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जो पैसा थोड़ा सा बचाना चाहते हैं वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट वहां पर ना कॉलेजेस की भी जरूरत नहीं है, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी कॉल्ड रेजिना, ठीक है। रेजिना की फीस बहुत कम है, बहुत कम है उसकी फीस, करीबन करीबन मुझे लगता है 15 लाख में निपट जाएगा। हाँ, तो वो ज्यादा बेटर है साहब। तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। देखो मतलब मुझे ना उस दिन वहां से वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं दे पाया, तो मैंने इसलिए आज तुमको फोन अभी किया था। हम अभी तक कंफ्यूज है कि हम करेंगे क्या, बच्चा भी कंफ्यूज है। कई बार ये सोचते हैं कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया बच्चे ने पीसीबी लेके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई गलत डिसीजन है, कोई गलत डिसीजन नहीं है। इनफैक्ट मैंने कल भी काफी सारे कोर्सेज निकाले थे यूके में, पर फिर आपका खर्चा का सिस्टम नहीं बैठ रहा था। यूके में सर, यूके में अगर हम अपना लिविंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1-1.5 साल यूके में रहा हूँ, अच्छा, यान्या भी ट्रैवल कर चुकी है, मेरी वाइफ भी। ठीक तो है। वहाँ हमारे लिंक्स हैं, मतलब उसके अपना रहने खाने पीने अरे के वाह, साथ। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वहाँ पे रहने खाने पीने का तो कोई हमें टेंशन नहीं है। ठीक है अगर वो सब चीजें हम हटा दें तो वहाँ चीप बेस्ट में क्या हो सकता है? सर, देखो बहुत हम सस्ता लेंगे तो भी 18-20 लाख तो ट्यूशन फी जाएगा ही जाएगा, हम्म। ठीक है, पर ईयर। और 3 साल का कोर्स होगा। हम्म। कोर्स एक से बढ़कर एक है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये है कि 18-20 लाख रुपया साल का लगेगा, लिविंग का हटा के? लिविंग हटा के। अच्छा अच्छा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट, लिविंग और वो सब तो हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ है अपना घर। हम्म, तो अगर 20 लाख आपको ठीक बैठता है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज तो इंडिया ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर कनाडा करो, ज्यादा बेटर रहेगा। कनाडा सस्ता है? कनाडा सस्ता पड़ेगा। ओके। कनाडा आप कह रहे हैं 15 तक में हो जाएगा? हाँ, अगर हम कॉलेजेस वाला ऑप्शन लेते हैं तो हमारा 15 तक में हो जाएगा। ओके। अच्छा, दुबई में भी है कुछ कोर्सेज वो सर सस्ते? दुबई बहुत महंगा पड़ेगा आपको। अच्छा, महंगा है। दुबई बहुत महंगा पड़ेगा। ओके। दुबई की एजुकेशन बहुत महंगी है, क्योंकि ओके। वहाँ जो भी एजुकेशन ब्रांड है ना वो सारे विदेशी हैं। जैसे हम्म। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ठीक है, हाँ। हेरियट वार्ड का कैंपस है। अब ये क्या करते हैं, अपने विदेश में जो मतलब यूएस में जो उनकी फीस है वही फीस वो दुबई में भी चार्ज करते हैं। हम्म। तो वो हमारे को बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसमें अगर सर फंड ना हो तो उसके लिए क्या होता है प्रोसेस, कुछ बताते हैं? एजुकेशन लोन वगैरह मिल जाते हैं जो? सर मिलता है एजुकेशन लोन, वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, प्रॉपर्टी का वो पेपर रखते हैं या सिर्फ देखते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, प्रॉपर्टी का पेपर रखते हैं, उसके अगेंस्ट ही आपको लोन मिलता है। और 1 साल का टाइम गैप देते हैं कोर्स खत्म होने के बाद, उसके बाद रीपेमेंट स्टार्ट हो जाती अच्छा। किसी ने बताया था कि बस वो प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब पेपर वगैरह नहीं रखते। है। नहीं, पेपर रखेंगे सर, वो सिविल और वो सब चीजें चेक करते हैं, तो फिर उसके भी यहाँ पे आपको मिल जाता है मिल जाता है। तो एजुकेशन लोन। देखिए 15 लाख तक का लोन तो बिना किसी पेपर के आपको मिल जाए। हम्म। जहाँ 15 लाख से ऊपर की बात होती है वहां हम्म। पे वो पेपर रखेंगे सर। हम्म। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही होती है। हम्म। तो यूके अगर आप करना चाहते हो तो यूके भी कर सकते हो। तो 20-1 लाख रुपया ट्यूशन की पर साल लग जाएगा आपका। कनाडा करोगे तो 15-16 लाख में हो जाएगा। हम्म। और इनफैक्ट यूरोप में भी कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने अ, उन्होंने बताया था, जी जी बेल्जियम बताया था, आई थिंक जी वो जी सस्ता है जी, वो। वो बहुत सस्ता है, वो बहुत सस्ता है वो। ऐसा ही कुछ कराओ ना सर जो ज्यादा। ऐसा कर लेते हैं ना, तो देखो यानी ये नाम नोट करो बेटा, Yes, sir. कैथोलिका लिस्बन, कैथोलिका लिस्बन, ठीक है। क्योंकि सर एक बार कर लेगा बच्चा फिर तो उसके बाद निकल सकता है इधर उधर जी काम जी, ना करके। तो मैं लिख रहा हूँ कैथोलिका लिस्बन। जैसे ये वहां एक से यूनिवर्सिटी, कोर्स,
जी सर, आप क्या कह वहां रहे से थे? कोर्स करके बच्चा फिर तो जा ही सकता है ना। हाँ, वहां से देखो, कोर्स करने के बाद अप्लाई तो कहीं भी कर सकता है ना जॉब्स के लिए बिल्कुल वो कर यूरोप सकता है। में। पूरा देखिए, यूरोपियन यूनियन का सिस्टम ये है कि लेट से आप पोलैंड में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक जी। है, और आप जॉब्स के लिए अप्लाई करने बैठे, तो आप जॉब्स के लिए पूरे यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। तो आप पोलैंड का बच्चा आपको टर्की में काम करता हुआ मिलेगा, और स्विट्जरलैंड का बच्चा आपको डेनमार्क में काम करता हुआ मिलेगा, क्योंकि अच्छा, पोलैंड, आपका जो वर्क वीजा होता है वो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए वैलिड है यूके भी वैलिड होता है उसमें। ना। उसमें यूके वैलिड नहीं होगा सर, अब अलग हो गए ना ये लोग। सो हाँ हाँ। यूके, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ये तीन अलग रहेंगे, और बाकी यूरोप यूनियन एक साथ रहेगा। अच्छा, पोलैंड में भी कुछ देख सकते हैं क्या? मेरा वहाँ पोलैंड में भी कुछ है जानकारी। सर पोलैंड में इंग्लिश में कोर्स नहीं मिल पाएगा, प्रॉब्लम वो वाला है, इंग्लिश में थोड़ा ओके। लैंग्वेज बैरियर। ना लैंग्वेज बैरियर आएगा। बेल्जियम में कर सकते हैं, नेदरलैंड्स में कर सकते हैं, आयरलैंड में कर सकते हैं, आयरलैंड में भी सस्ता पड़ जाएगा आपको। थाईलैंड तो अब कहते हैं बहुत ठंडा होता है। ठंडा तो होता है, इट्स ओके, इंडियन बच्चा एडजस्ट कर लेता है, और इतना कोई वो न्यूजीलैंड नहीं भी है। महंगा है साहब। सॉरी, न्यूजीलैंड बहुत महंगा है सर, वो तो बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। और उसमें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाकी कंट्रीज बोलती है कि आप हमें 1 साल का ट्यूशन फी और 1 साल का लिविंग कॉस्ट दिखा दो, हम आपको वीजा दे देंगे। हम्म न्यूजीलैंड बोलती है कि आप हमें 1 साल का दिखाओ प्लस 3 साल का प्लान बताओ कि पैसे कहाँ से लाओगे, हम्म। उसके फिनेंशियल सबमिट करो, हम्म तब जाके देंगे। और वो ऐसी फ्री की कंट्री है, एक कोविड का केस निकलेगा पूरी कंट्री बंद हो जाएगी। हम्म। उनका बहुत फ्री की बिजनेस है, मतलब। और दूसरा, बहुत खाली खाली है, इट इज वेरी एम्प्टी। ओके। न्यूजीलैंड में है बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, मैसी यूनिवर्सिटी कहते हैं, हम्म। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर स्टडिंग बायोलॉजी। हम्म। एक काम करते हैं, चेकोस्लोवाकिया चेक करो, बहुत। चेकोस्लोवाकिया कहाँ पड़ता है? चेकोस्लोवाकिया में बहुत सारे, प्राग, यूनिवर्सिटी ऑफ हाँ, प्राग, प्रयाग प्रयाग, हाँ सुना है मैंने, प्रयाग यूरोप प्राग, में। बहुत सस्ता पड़ेगा हमें। 9.5 10 लाख रुपए की ट्यूशन फी है उसकी, हाँ ठीक ठीक है। है। तो वो अपन ट्राई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो 3 साल का हो सकता है वहां से हम्म, वो इतना। वाला हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखो सर, मेरे हिसाब से ना सिस्टम तो बैठ जाएगा, यानी कि हम कोर्सेज निकाल तो पाएंगे जो सस्ता आपके बजट में बैठेगा। हम्म। अब हमको ये सोचना है कि इसका सिलेक्शन कैसे कराएंगे, वो जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा। जी। तो सिलेक्शंस के लिए हमें इसकी प्रोफाइलिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और अभी भी यान्या के दिमाग में क्लियर नहीं है कि उसको कोर्स कौन सा करना है। हम्म। तो मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। जी। तो अभी क्या करेंगे, मैं आपको एक अंजलि से ईमेल भिजवाऊंगा, दैट विल हैव माय लिस्ट ऑफ सर्विसेज, जो हम सर्विसेज ऑफर करते हैं। हम्म। मैं आपको एक मेंटोर दूंगा, यान्या। उस मेंटोर का काम है आपका कोर्स सिलेक्ट करवाना, आपको डे टू डे एक्टिविटीज देना, और आपकी प्रोफाइल मजबूत करना, ठीक है। तो आप रेगुलर बेसिस पे उनसे बात करते रहेंगे, हर हफ्ते आपकी मीटिंग होगी, हर हफ्ते आपकी काउंसलिंग होगी, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, यस सर। ठीक है। तो वो मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट के हाथों सुपुर्द करूंगा, वो मेरे टीम के ही मेंबर है। इनफैक्ट जो आपकी सेकंड मेंटर है वो भी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो आप उन दोनों से बातचीत करोगे ना, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये काम कर लेते हैं, दूसरा तुम्हारा प्रोफाइल मजबूत कर देते हैं, और अगले साल मंथ ऑफ मई जून में मैं आपको एक रिसर्च रिपोर्ट दे दूंगा सर, जिसमें आपकी सारी ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके बजट में फिट होती है, हम्म। उस यूनिवर्सिटी की आपकी लिस्ट आ जाएगी और कोर्सेज का नाम आ जाएगा। जी। आप लोगों ने बैठ के उसको चेक करना है, और जो आपको ठीक लगेगा उसको हरा कर देना है, ग्रीन कर देना है उसको। जो आपने ग्रीन कर दिया, बस हमें समझ में आ जाएगा कि हमें वो अप्लाई करना है। यान्या, यू वांट टू से समथिंग? नो सर। नहीं, ये पूछ रहा है जैसे आप ये सब जो सर्विस वगैरह दे रहे हैं, इसके क्या चार्जेस वगैरह हैं साहब? सर, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ करके 1,05,000, अच्छा, और ये 2 साल के लिए वैलिड। तो ये मतलब कब देने हैं? अभी से शुरू करेंगे, 2024 के अगस्त तक चलेगा, नहीं तो ये पेमेंट कैसे देनी होती है फिर आपको ये? इंस्टॉलमेंट में। अच्छा। 3 इंस्टॉलमेंट बनती है इसकी। ओके। 1 लाख रुपए मतलब ये सारा कराने का सारा कोर्स? हाँ, सारी अच्छा। एक्टिविटीज हो गई इसमें, सारी काउंसलिंग हो गई इसमें। और हम्म। जो मैं आपको मेंटर दे रहा हूँ वो बहुत सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, मतलब 16-17 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट है।
तो Yes. उनके साथ आपको मिलेगा। बस मतलब आप सिर्फ अगर उनकी काउंसलिंग कराने जाओगे ना, तो आपकी काउंसलिंग की कॉस्ट ही 8-9 हजार रुपया है, ठीक है। तो वो इसमें इंक्लूडेड रहेगा, प्लस इनकी प्रोफाइलिंग की सारी एक्टिविटी, प्लस इनका एप्लीकेशन। बस हाँ, एप्लीकेशन फी जो यूनिवर्सिटी की होती है वो आपको बियर करनी है, ठीक है। दैट्स हाउ। वो क्या होती है जी, अलग अलग है? अलग अलग होती है सर, कहीं पे 100 यूरो होती है, कहीं पे 50 पाउंड होता है, कहीं पे 20 होता है, ऐसे ऐसे। अच्छा, तो आप बस एक बार ये देख लीजिए कि हम जो हमारे बजट के अंदर कौन सी आ रही है, फिर वो हम हो उस जाएगा हिसाब। सर, उसकी चिंता नहीं करो। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा दिए, मेरे दिमाग में से बात करते करते ना सारे ऑप्शंस खुल गए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राग देखेंगे, हम्म, हम लोग आयरलैंड देखेंगे, हम्म, और हम लोग कनाडा देखेंगे। ये 3 कंट्रीज देखेंगे, और सारी हम यूनिवर्सिटीज देखेंगे जिनका ट्यूशन फी 15 लाख से कम हम्म। है, ठीक है। तभी आपके उसमें सेट हो गए, ठीक 15 है। लाख, 15 लाख के अलावा लिविंग और वो अलग है? हाँ, लिविंग अलग होगा सर। तो वो भी 10 लाख रुपए तो हो ही जाएगा आई थिंक। हाँ सर, उसमें कुछ अर्निंग तो ये भी करेगी ना। अगर ये भी वहां जाएगी तो खाली थोड़ी ना बैठी रहेगी, हम्म, तो भी पार्ट टाइम वगैरह करना होगा। 70-80% पैसा इसको निकालना है वहां से। हम्म। उस मामले में कनाडा ज्यादा बेटर है, क्योंकि कनाडा का लिविंग कॉस्ट 6 लाख रुपए है ना, तो वो आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। और बताएं सर, कुछ और मैं बता सकता हूँ तो। बस सर, अभी तो बहुत कंफ्यूज है बच्चों को लेके। अभी भी कंफ्यूजन है, अब तो सॉर्ट आउट कर मतलब दिया सर। नहीं, सॉर्ट आउट तो कर दिया, आगे प्लानिंग और ये सब चीजें तो वो कर। तो धीरे धीरे होगी ना, जब आप हाथ जोड़ हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, तभी तो धीरे धीरे एक एक करके प्लान्स होंगे, हम्म, स्टेप्स बनेंगे। और आपको चिंता थोड़ी करनी है, जब हमने जिम्मेदारी ले ली है तो वो तो हमारा काम है। इसमें भी कुछ वो नहीं है सर, गुंजाइश नहीं है कुछ 1,05,000 में? नहीं, इसमें गुंजाइश करोगे तो फिर कैसे होगा। हम्म, इसमें इसमें करोगे तो कैसे होगा सर। हम्म, है, देखो मतलब वही है ना, भोग लगाने में कंजूसी करोगे तो कैसे होगा सर, ऐसे थोड़ी होगा। इसमें बात नहीं होती, ये। ठीक है। एक चीज ये कर सकते हैं कि हम लोग 1,05,000 में ना 5 यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं। हम्म। मैं सिर्फ ये कर दूंगा कि 5 की जगह हम इसको 7 यूनिवर्सिटी कर लेंगे, और हम उसे 1,05,000 में ही करेंगे। नहीं नहीं, 7 यूनिवर्सिटी से करने से क्या फायदा उसका? फायदा होगा सर, फायदा ये होगा क्योंकि 5 यूनिवर्सिटी जब आप करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कम यूनिवर्सिटीज अप्लाई की हैं, के चांसेस पर आपको डाउट रहता है। जब हम्म, आप 7 या 8 यूनिवर्सिटी कर लेते हो ना, तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, राइट। सो स्कोप ज्यादा रखो। मतलब एक यूनिवर्सिटी आपको पढ़ो लगा लो, हमारे यहाँ खर्चा पड़ जाता है 13 हजार के आसपास। तो हम्म। आपने 2 यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा करा ली, मतलब 26 हजार रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो ये 1,05,000 में आप ये 7 सारा, यूनिवर्सिटीज इंक्लूड करेंगे। इसकी फीस आप ही देंगे? नहीं, इसकी फीस मैं नहीं दूंगा सर, वो अलग है? बिल्कुल अलग है। जो एप्लीकेशन फीस होती है वो अलग है, वो आप देंगे। बस आप उसको फिल और वो कराएंगे, पेपर फिल वर्क सारा? सिर्फ मतलब वो फिल को आप फिल ना समझे, उस फिल को बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो वो सब कुछ कराना हमारा काम। अच्छा। बस आपको स्कूल से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, और यान्या को एसेज वगैरह लिखने हैं, हमें उसको एडिट करना है, फॉर्म फिल करना है, अपलोड करना है, वो सब हमें करना इसको आइल्स भी तो करना पड़ेगा? है। आइल्स देना पड़ेगा, और आइल्स के लिए कोचिंग मत लगाइएगा, ओके। ठीक है। यान्या को आइल्स के लिए कोचिंग नहीं चाहिए। यान्या को सिर्फ टेस्ट समझना है, अगर टेस्ट वो समझ लेगी तो वो अपने आप आइल्स निकाल ओके। लेगी। आइल्स कब दे सकते हैं, ये नेक्स्ट ईयर? आइल्स आप कभी भी दे सकते हो, आप 2 साल वैलिड रहता है, तो आप कभी भी जब आपका वर्क थोड़ा खाली हो, अगले साल समर वेकेशन में करवा दीजिएगा। अगले साल होएगा? नहीं, हो तो रोज ही रहा है सर, लेकिन अभी उसको प्रिपेयर भी तो करना होगा। तो इस हिसाब से बेटर होगा कि इस साल का फाइनल एग्जाम जब हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा प्रिपेयर करके मई में आप एग्जाम दे दो आइल्स वाला। तो आइल्स कभी भी दे सकते हैं? कभी भी दे सकते हैं सर, हर महीने हो रहा अच्छा जी। है। और कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं सर इसको? एन नंबर ऑफ टाइम्स, उसमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, कोई बात। लेकिन 13 हजार रुपए लगते हैं सर, तो हम बार बार तो नहीं देंगे, हम एक ही बार देंगे और निकालेंगे। 13,000 रुपये फीस है उसकी? जी। ओके। यानी और कुछ बेटा, तू मेन तो सर इसका बस एक दिमाग ये सेट करोगे इसको करना क्या है, अभी तक तो वो सेट नहीं। आप देखो, जैसे आप मैं जिस इसको दिन बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि बेटा तू नर्सिंग में चली जा, बहुत स्कोप है उसके अंदर आगे,
ये कहती है नहीं वो काम मेरे को सही नहीं लगता। सही नहीं लगता, तो सर अब वो करवा ही नहीं पाओगे आप उससे, वो करवा ही नहीं पाओगे, उल्टा हो जाएगा सर। लेकिन हम सोच नर्सिंग का रहे हैं काम कि इतना अगर ये आसान नहीं है सर। अब नर्सिंग कर हर नर, कोई नहीं कर पाता, आप इस बात को समझना। जैसे हर किसी को आप बोलोगे कि मेडिकल प्रोफेशनल बन जाए, डॉक्टर बन जा, हर किसी के बस की नहीं है। किसी को खून से डर लगता है, किसी को सुइयों से डर लगता है, ठीक है। आप नर्सिंग करने के लिए बोल रहे हो, उसमें इतना केयरिंग होना पड़ता है, ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो यानी ने जिंदगी में नहीं की होगी, ना ही वो करना चाहिए, समझ रहे हो। तो हर किसी के लिए नहीं होता है सर that। जो अभी इसको इसको अभी साइकोलॉजिस्ट से बात करने दो, ये हम्म, अपने आप सेटल करेगी कि इसको कोर्स क्या करना उस कोर्स का आगे कुछ वो फ्यूचर भी हो ना सर, आगे है। कुछ डेफिनेटली सर, ऐसे थोड़ी ना कोई इसको कोर्स करा देंगे। पता लगे वो करने के बाद कोई जॉब्स ही नहीं है उसके ना अंदर। ना ना, जो आपका साइकोलॉजिस्ट है ना, वो क्या करेगा, जो इमर्जिंग करियर्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि इनका आगे काफी आउटपुट आने वाला है, हम्म, उन कोर्सेज को इसके साथ डिस्कस करेगा। उसमें से जो कोर्स यान्ना को पसंद आएगा, उसके आगे का क्या स्कोप है उसे समझाएगा, बस आप लोगों को भी बताएगा कि क्या कोर्स करना चाहिए इसके लिए, और कौन सा रूट है उसका, और क्या उसके आगे का स्कोप है। आप भी उस डिस्कशन के पार्ट रहेंगे और आप भी अपना ओपिनियन दे सकेंगे। कुछ आया समझ आना तुम्हें करना क्या है इतनी सर से बात करने के बाद। नहीं, अभी कहाँ आएगा, अभी तो मैंने थोड़ी इसको समझाया है कि इसको क्या करना है, अभी तो मैंने ऑप्शंस दिखाए हैं उसको, हम्म, ठीक है। एंड यान्ना विल टेक हर ओन टाइम इन डूइंग थिंग्स, नो वरीज। यान्ना देखो, कंफ्यूज वो होता है जो इंटरेस्टेड होता है, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है वो कंफ्यूज भी नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स अ गुड थिंग टू बी कंफ्यूज, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। Yes. एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम फेज, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सर आप बस शुरू कराइए अब, ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करता हूँ बाकी। थोड़ा इसका देख लीजिए कुछ हो जाए तो बस, और क्या। अरे सर, अब 7 यूनिवर्सिटी कर लिया, अब आप मुझे मार डालोगे अपने क्या? साथ मेन 7 यूनिवर्सिटी की नहीं है मेन, जरा आजकल काम धंधे सर बड़े खराब हैं, बहुत परेशान सर है। कौन सा आपको एक साथ देना है मेरा पैसा भी? नहीं नहीं वो मैं नहीं कह रहा एक साथ देना है, लेकिन देखो उसमें कुछ हो सके तो मैं भी वाइफ से बात करूंगा फिर सारी डिस्कस करके। सर आप अगर कल तक मुझे ओके करते हो तो मैं देख सकता हूँ, उसमें 5-10 हजार रुपए कुछ ऊपर नीचे कर लूंगा मैं। अदरवाइज तो शायद मुश्किल होगा, मतलब इमीडिएट करो तो फिर बात होती है सर। तो ये आप मतलब जब तक बच्चे का बाहर जाएगा तब तक हमारे को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल, तब तक सपोर्ट। सारी यूनिवर्सिटी का भरना या करना, पेमेंट जमा करानी और ये सब। राइट। पेमेंट तो सब बैंक से ही जाती होगी इसमें, हाँ सर, वाइट जाएगी पेमेंट सारी। सारी वाइट ही जाती होगी ना। हाँ, आपको 6 महीने पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है सर कि सारा एक ही बैंक अकाउंट से जाए, हम्म आप 4-5 बैंक अकाउंट को मिलाकर भी पे कर सकते हो, हम्म। ठीक है। तो वो सारा हो जाता है। और दूसरा, बैंक लोन अगर कर लेते हो ना, सबसे बेस्ट हो जाएगा सर। क्या ले लें। बैंक लोन ले लोगे ना अगर, तो सबसे बेस्ट हो हाँ। जाएगा। बैंक का यू करो, देखो, आप लोन पास करा लो, हम्म लेकिन लोन हाथ में मत लो। हम्म जो पासिंग के पेपर्स है ना, उसके हम्म बेसिस पर आपका वीजा लग जाएगा, हम्म। उसके बाद आप लोन मत लेना बेशक, अच्छा। ठीक है ना। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। अगर वाइट की कमी है तो इसको ऐसे कर सकते हम्म। हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाएगा। हाँ तरीके तो बहुत सारे हैं आपके पास, काम है आपका। ऑब्वियसली, हम्म। ठीक है। वो पता है इसका। जी जी। बस सर अब आप ओके कीजिए, मैं फिर शुरू करूं। ठीक है सर, मैं जरा वाइफ से भी डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो आप मुझे कल तक फोन कर दीजिएगा। जैसे आप फोन करेंगे मैं फिर इसको ऑन कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय यान्या। Thank you, sir. यान्या, यू स्माइल समटाइम्स और यू डोंट। I do, sir. चलो, थैंक यू, बाय। Thank you, sir.